وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد. ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان ساتھی مجھ سے ملا اور اس نے کچھ مسائل مجھ سے پوچھے. ذرا عام فہم اور موٹے مسائل تھے. آج دل میں یہ فکر اور دل میں یہ داعیہ پیدا ہو رہا ہے روزے جیسی اہم عبادت کے متعلق اس رمضان کے مہینے میں جو اہم موٹے مسائل ہیں اسے ضرور ذکر کیا جائے تاکہ ہم اس مسائل کو سمجھ کر ان عبادات کو کما حقہ ادا کر سکیں. آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں صوم کا جو لفظ ہے یہ 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یعنی روزے کا کلمہ، روزے کا جو لفظ ہے یہ 10 بار استعمال ہوا اور یہ دین کے اور اسلام کے شعائر میں سے بنیادی عبادات میں سے شامل ہے. اور یہ دینی عبادات میں واحد یہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حدیث قدسی یہ ہے کہ روزے کا بدلہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں جنت دے دوں گا یا میں تمہیں نہر دے دوں گا یا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا یا میں تمہارے لیے جنت میں اتنے محلات تہ کر دوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب لفظ استعمال فرمایا ہے حدیث قدسی میں کہ روزے کا بدلہ میں خود اللہ ہی ہوں. یعنی اس میں اللہ نے الفاظ کو متعین اور مقدار نہیں مقرر فرمائی بلکہ فرمایا کہ میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. چنانچہ اس اہم جیسی عبادت کو صحیح طریقے سے کما حقہ ادا کرنا یہ میرا اور آپ کا دینی اور اخلاقی فریضہ بنتا ہے. ایک نوجوان ساتھی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ مفتی صاحب روزے کی حالت میں اگر الٹی آ جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ روزے کی حالت میں اگر قے اور الٹی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کا الٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے تھوڑی آ جائے چاہے زیادہ آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ کچھ اور ہے، ہم سمجھتے کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا ہوا ہو اور پھر اس کے منہ بھر کر الٹی آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں ایک اور صورت ہے کہ اگر کسی شخص کی الٹی آئی ہو اور قے آئی ہو اور آنے کے بعد دوبارہ جان بوجھ کر اس نے دوبارہ اندر لوٹا دیا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ، آج کل بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب انجیکشن سے ٹیکا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو یاد رکھیے انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اس کی دلیل بڑی عجیب ہے. بڑی عجیب فقہاء کرام نے اس دلیل کو پکڑا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کو بچھو نے ڈس لیا تھا روزے کی حالت میں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بچھو ہوتا ہے یہ جب ڈستا ہے تو اپنا زہر اندر پھینکتا ہے اور اس کا خون چوس لیتا ہے. تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا کہ جیسے اس وقت ان کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا اسی طریقے سے آج اگر کوئی ضرورت کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے روزے کی حالت میں انجیکشن لگاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے. بعض لوگ صبح سحری کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نیند سے اٹھ گئے، اہتمام کیا سحری کا، لیکن وہ آ کر مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے دعا نہیں پڑھی تھی سحری کرتے وقت، ہم نے روزے کی دعا نہیں پڑھی تھی، تو کیا ہمارا روزہ درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے نیت کرنا دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی لیکن آپ نے نیند سے اٹھے، اپنی نیند کو قربان کیا، سحری کی، تو یہی خود نیت ہے. اسی سے روزہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے الگ سے ورڈز اور الفاظ اور اس دعا کا استعمال کرنا اگرچہ سنت تو ہے لیکن ضروری نہیں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، ہمارے کچھ مسلمان بھائی عام طور پہ نماز میں آتے ہیں، ذرا مسئلے کو سمجھیے گہرائی سے. کئی دفعہ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب وہ نماز پہ آتے ہیں ادھر امام
इस्तेमाल रुकू में किया हुआ होता है। अब ये जो हमारा साथी है ये उस नीयत को जबान से बोलना शुरू करता है। मैं नियत करता हूँ 4 रकात ज़ोहर नमाज की, पीछे इस इमाम के मुंह में रखाना काबा की तरफ, वक्त ज़ोहर। अभी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, उधर इमाम ने अपने रुकू से सर उठा लिया और ये रकात गई। तो याद रखिए ये अल्फाज इस्तेमाल करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप जब वजू करके आए, आप उठ कर आए, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जब मस्जिद में पहुंचे हैं, जब इमाम के साथ शामिल हो रहे हैं, तो ये खुद ब खुद नियत है, इसलिए उन अल्फाज का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं। तीसरा मसला, कुछ साथी ये भी पूछते हैं कि हमारी सहरी के वक्त आंख नहीं खुली, हम सो गए, हमारी आंख नहीं खुली और पता चला कि 8 बज गए 9 बज गए हैं, तो अब क्या हमारा रोजा होगा या नहीं होगा? तो याद रखिए अगर जवाल से पहले यानी निस्फे दिन से पहले जवाल का वक्त गालिबन मेरा ख्याल है काम का टाइम शायद 11:30 पौने 12 का टाइम होता होगा गालिबन में। अगर उस वक्त से पहले अगर किसी साथी ने बगैर सहरी किए हुए भी रोजे की नियत कर ली तो रोजा ठीक हो जाएगा और रोजा उसका अदा हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद अगर वो लेट हो गया है तो निस्फे दिन आधा दिन बगैर नियत के गुजरा है तो रोजा उसका ठीक है। मिसवाक लगाने से रोजा नहीं टूटता, अलबत्ता मंजन या टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से डर ये होता है कि उसके जर्रात अंदर न चले जाए, इसलिए उससे एहतराज करना चाहिए। मिसवाक लगाने से रोजा नहीं टूटेगा। बाज़ लोग दमे के मरीज होते हैं, नेबुलाइजर और इनहेलर इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिए दमे के मरीज अगर ऐसा नेबुलाइजर और ऐसा इनहेलर इस्तेमाल करते हैं जिसमें दवाई के अज्जा ना हो, सिर्फ और सिर्फ हवा हो और उस हवा के जरिए से सांस की आमद रफ्त होती हो, तो उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर ऐसी इनहेलर या ऐसा नेबुलाइजर इस्तेमाल किया जा रहा हो जिसमें दवाई के अज्जा शामिल हो, तो अगर उसको इस्तेमाल कर दिया गया तो उससे रोजा टूट जाएगा। बाद दफा चोट लग जाती है या नक्सीर फूट जाती है, तो याद रखिए खून के निकल जाने से रोजा नहीं टूटेगा। बाज़ दफा ये मसला भी पेश आता है जो आमतौर पे खवातीन के साथ पेश आता है कि दौरान रोजा मेंसेस आ जाते हैं या रोजे से पहले उनके साथ ये मामला पेश आ जाता है। अगर वो टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर पाई है या दवाई इस्तेमाल नहीं कर पाई है और इस बीमारी का शिकार हो गई है तो उनका रोजा टूट जाएगा, वो बाद में दोबारा उस रोजे की कज़ा करेगा। रोजे की हालत में गीबत करना, गाली गलूच करना या झगड़ा करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसे रोजे की अल्लाह को जरूरत नहीं, लिहाजा वो रोजा मकरूह हो जाएगा और उस रोजे का सवाब चला जाएगा। अगरचे रोजा हो जाएगा यानी फर्ज तो उसका अदा हो जाएगा, लेकिन उस रोजे का सवाब हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए रोजे की हालत में किसी की गीबत करना या गालिम गलूच करना ये जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अगर किसी शख्स को रोजे पर ताकत नहीं है, वो ज़ईफ है, कमजोर है, ताकत नहीं रख पाता, या उसको डॉक्टरों ने ये मशवरा दिया है कि अगर तुम रोजा रखोगे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और तुम्हारी तबीयत कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और तुम्हें मुख्तलिफ हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा, यानी हालत इंतहाई नाजुक हो जाएगी, तो ऐसे शख्स के लिए रोजा छोड़ने की इजाजत है और इसको बाद में एक रोजे की कज़ा करनी पड़ेगी। और अगर ये शख्स ऐसा है कि इसको बाद में सेहत मिलने की उम्मीद नहीं है, बहुत ज्यादा ज़ईफ हो गया है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, इसे सेहत मिलने की उम्मीद नहीं है, तो सुन लीजिए कि हर रोजे के बदले में सदका फितर की मिक़दार सदका करना लाज़िम है। मेरा ख्याल है आम के एतबार से सदका फितर की जो रकम है गालिबन मुझे मुफ्ती अरशद साहब को सही मालूम होगा, गालिबन वो $30 गालिबन बनता है, तो $30 के मिक़दार सदका फितर करना लाजमी होगा। बाज़ लोग ये एक मसला पूछते हैं, रात को भी मुझसे एक साथी ने पूछा कि मुफ्ती साहब हम किसी वजह से तरावी नहीं पढ़ सके तो क्या हम वितर की जमात में शामिल हो सकते हैं या नहीं? तो याद रखिए अगर आपने फर्ज पढ़ लिए हैं और तरावी किसी वजह से आप नहीं पढ़ सके हैं, तो अगर आपने सिर्फ फर्ज पढ़ लिए हैं तो फर्ज पढ़ने के बाद आप वितर की जमात में शामिल हो सकते हैं। और वितर की जमात के लिए फर्ज का होना लाजमी है, तरावी का होना लाजमी नहीं है। अगर किसी वजह से तरावी छूट गई है तो अगर आपने फर्ज पहले पढ़ लिए हैं, इमाम के साथ पढ़ लिए हैं या अकेले पढ़ लिए हैं, तो वितर की जमात में शामिल हो सकते हैं। आखिरी एक मसला आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, वक्त करीब हो चुका है। एक गलत अकीदा हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा
शायद आप लोगों तक भी ये अकीदा फैल चुका हो। वो अकीदा ये है कि जुम्मतुल विदा वाले दिन एक नमाज का सवाब 70 नमाजों के बराबर शुमार किया जाता है, लोग कहते हैं। लिहाजा अगर किसी की नमाजें छुट्टी हो तो जुम्मतुल विदा वाले दिन अगर आप एक नमाज पढ़ लेंगे तो पिछले साल की 70 नमाजें के बराबर वो काउंट हो जाएगा। लिहाजा एक सीजन और एक माहौल और एक रस्म बना ली है कि जी हम पूरा साल नमाजें नहीं पढ़ेंगे और रमजान के जुम्मतुल विदा वाले दिन हम पूरा दिन थूक के हिसाब से बाकायदा ज्यादा नमाजें पढ़ लेंगे और वो पूरे साल की नमाजों का किफाया हो जाएगा। याद रखिए, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये फजूल मन गलत बात है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी गलत अकीदे से अपने आप को बचाना चाहिए। आखिरी 2-4 मसले भी जिक्र कर दूं रमजान से मुताल्लिक। याद रखिए, 3 चीजों पर ज़कात वाजिब है, सोना, चांदी, माले तिजारत। किसी शख्स के पास इन 3 चीजों में से कोई एक चीज है, उस पर ज़कात वाजिब है। ये जो हमारे पास नोट होते हैं, हांगकांग डॉलर होते हैं, पैसे होते हैं, रुपया होता है, ये भी दर हकीकत सोना है। अगर आप देखें तो इस पैसों पे लिखा होता है हामिल हाजा को मुतावजे पर अदा करेगा। ये गोया बैंक में सोना जमा होता है, गोया ये सोना है। लिहाजा अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी की मिकदार, आपको हांगकांग डॉलर कितना बनता है वो आप जरा जानते हैं, उतनी रकम अगर किसी साथी के पास मौजूद है तो उस पर 1000 रुपए की जगह पर 25 रुपए ज़कात वाजिब है। 2.5% उस पर ज़कात वाजिब हुआ करती है, वो 2.5% देना जरूरी है। और ये ज़कात आप अपने ऊपर अब्बू को, अम्मी को, दादा को नहीं दे सकते, नीचे भी नहीं दे सकते, बेटे को नहीं दे सकते हैं, बेटी को, पोती को, पड़पोती को नहीं दे सकते, लेकिन बराबर सराबर दे सकते हैं। क्या मतलब? भाई को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं अगर वो मुस्तहक़ ज़कात है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम मसाइल पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।